राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कंसिडरिंग द कंसर्न एक्सप्रेस्ड ओवर द परसिस्टेंस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम in the 8th report of the Parliament Standing Committee on Finance on Financial Institutions, the Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, constituted in May 21 a working group on willful defaulter under the chairmanship of Shri S.S. Kohli, the then chairman of the Indian Banking Association, for examining some of the recommendation of the committee. The group submitted its report in November 2001. The recommendation of the were further examined by an in-house working group constituted by Reserve Bank. According to the banks accordingly, the banks and financial institutions are advised on May 30, 2002 for implementing with immediate effect these recommendations. ठीक है? First one, which among the following is true with respect to willful default? The unit has defaulted in meeting its repayment obligation to the lender even when it has the capacity to honor the said obligation. The unit has defaulted in meeting its repayment obligation to the lender and has not utilized the finance from the lender for the specific purpose for which finance was availed of, but has diverted the fund for other purposes. The unit has defaulted in meeting its repayment obligation to the lender and is confined of the funds so that the funds have not been utilized for the specific purpose for which finance was availed of, nor are the funds available with the unit in the form of other asset, all of the above. See, अंकित मॉड्यूल वाइज इसलिए टफ है ना, बिकॉज हर मॉड्यूल में से केस स्टडी नहीं आता, राइट? मैक्स 12 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर्स बहुत सारे हैं, सो जो इंपॉर्टेंट है लेट्स डू दैट. क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड. सो आंसर हियर इज नंबर 1. पहले समझ लेते हैं. आई थिंक ऑप्शंस बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, सो आई विल डू वन थिंग. आप लोग ऑफिसर अड्डा के टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड है, राइट? सो आई विल सेंड दिस एज अ पीडीएफ ऑल्सो, जिससे आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ने को मिल जाए. सो द क्वेश्चन इज द यूनिट हैज डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स पेमेंट रीपेमेंट. यानी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो पेमेंट कर सकती थी, फिर भी उन्होंने मतलब वो कैपेसिटी में थे पेमेंट करने के लिए, फिर भी नहीं करा. दूसरा, द यूनिट हैज डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स पेमेंट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन टू लेंडर and has not utilized the finance from the lender for the specific purpose for which finance was availed of, but has diverted the fund for other purpose. दूसरा, they are saying कि उन्होंने जो फंड है ना वो उस पर्पस के लिए यूज नहीं करा जिस पर्पस के लिए उन्होंने लेंडर से अवेल किया था. The unit has defaulted in meeting its payment repayment obligation to the lender, and उन्होंने क्या करा है, फंड को स्पेसिफिक पर्पस से नहीं यूज करा, जिसकी वजह से राइट जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्पैक्ट हुई है. ठीक है, all of these is the right answer. दो why I am explaining you all these points कि अगर इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है you will be able to answer it. ठीक है, तो डाइवर्जन करा हो या फिर आपने पर्पस को किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेक हेल्थ पे आ गई है, ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन दी विलफुल डिफॉल्टर कैटेगरी. तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, राइट? सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव. दैट इज दी लास्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज क्लियर. सो विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर एंड विलफुल डिफॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में 2020 में. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ रिकलेक्टेड क्वेश्चन ऑफ 2020. यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट वन. All the borrowers identified as willful defaulters or the promoters involved in diversion or simpling of funds will attract the penalty if the willful default is more than 50 lakh, 25 lakh, 30 lakh or 40 lakh. So अगर outstanding amount कितने से ज़्यादा है, right, तो आपको penalty या penalty measures आपके ऊपर applicable हो जाएंगे. 50, 25, 30, 40. Right answer will be 25 lakh. So it will be impacted if the outstanding amount is more than 25 lakh. Correct? Next one. A lending institution can consider publication of the photograph
of only the borrower who has been of only the borrower who have been declared as willful defaulter following the mechanism set out in the RBI instruction. This shall not apply to non-whole time director, proprietors, partners, all of the above. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो विलफुल डिफॉल्टर की फोटोग्राफ को, है ना, जो बोरोअर है बेसिकली उनकी फोटो को पब्लिश कर सकते हैं, बट क्वेश्चन कह रहा है ये कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी? नॉन होल टाइम डायरेक्टर, प्रोप्राइटर, पार्टनर, ऑल ऑफ द अबव. इट इज नॉट एप्लीकेबल, दिस शैल नॉट अप्लाई टू नॉन होल टाइम डायरेक्टर. तो आपका होल टाइम डायरेक्टर इनके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर, कंपनी, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल है, बट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? नॉन होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Is it clear? चले आगे. Next one. Which among the following measures the proportion of working people in the total population is high, because this indicates that more people have the potential to be productive and contribute to the growth of the economy. Human Development Index, Demographic Dividend, Producer Price Index, none of these. ये एक generic question है. Again, this question was asked in 2020. ये सिलेबस में नहीं है, बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है. इनमें से कौन सा इंडेक्स है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेमोग्राफिक डिविडेंड, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, उसका कितना प्रपोर्शन जो काम कर रहा है वो यंगर जनरेशन को बिलोंग करता है, बिकॉज दैट इंडिकेट्स मोर प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. स्वाति मैम, वेरी गुड. नगुल सर, दीपदास sir, it is demographic dividend. ठीक है, it is called as demographic dividend, जो कि ये मेजर करता है कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से वर्किंग पीपल कितना है और वो कितने यंगर जनरेशन को बिलोंग करते हैं, बिकॉज वो प्रोडक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट वन. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी. मैं टाइम सीरीज का एक क्वेश्चन आज केस स्टडी क्लास में करवाया था. मैंने बोला कि मैं एक और रिवाइज करवा देती हूं आपको, जिससे बिल्कुल डबल श्योर हो जाए कि हाँ 100% मार्क्स आ जाएगा. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन. Let's quickly solve it.
चलिए सॉल्व करना शुरू करें. नाउ पहले हम ईयर लिख लेते हैं 1992, 1993, 1994 एंड 1995. ठीक है, यहाँ पे मीन हो जाएगा 1993. दिस विल बी -2, -1, 0, 1 एंड 2. y कितना हमें दिया हुआ है 18, 20, 21, 25, 26. ठीक है. नाउ एक्स वाई हो जाएगा हमारा, एक्स वाई हो, एक सेकेंड, एक्स दिया हुआ है, y हो गया, एक्स वाई हो गया एंड एक्स स्क्वायर. करेक्ट. इसकी वैल्यू आ रही है 21. दिस इज कमिंग एज 10. दिस इज 110. राइट. तो आपको वैल्यू निकालनी है बी की. फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर. तो एक्स वाई हो गया आपका 21, एक्स स्क्वायर हो गया 10. वैल्यू ऑफ बी विल बी 2.1. करेक्ट. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दैट करेक्ट? 2.1 है. ठीक है. वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? नाउ सी योर स्पीड. वैल्यू ऑफ ए कितना हो जाएगा? ए इज बेसिकली y, mean of y, average of y, so 110 of y bar divided by 5, that will be 22. Correct. So calculate the value of a, that a is equal to 22. Least square equation क्या बन जाएगी? What will be the linear equation that best describes the data? It is y is equal to a plus bx, whereby value of a is 22, value of b is 2.1x. Right? कितना टाइम लगा? दो 3 मिनट. How many PC can be sold in the year 1998? In case you want to save this session, do not forget to click on the like button. Now, कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए ईयर कौन सा दिया हुआ है? 1998. और एवरेज ईयर हमने क्या निकाला था? 1993. तो x विल बी 5. x की वैल्यू 5 आ रही है. राइट. नाउ पुट दिस इन इक्वेशन. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स 22 प्लस 2.1 into 5. $32.5. पांच मार्क्स, एक मार्क्स के होते हैं ये सारे क्वेश्चन. सो अगर इसमें 4 क्वेश्चन है, दिस इज अ 4 मार्क्स. दो मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है. आपके सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही होते हैं. ठीक है. सीआईबी में आपके सारे क्वेश्चन 1 ही मार्क्स के होते हैं. 2 मार्क्स का कुछ नहीं होता है.
केस स्टडी होता है 5 मार्क्स का, उसमें 5 क्वेश्चन, वो भी 1 मार्क्स का ही होता है ईच क्वेश्चन, राइट। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस। क्या रहा आपका स्कोर, जल्दी से बताते जाइए। वाई एवरीवन इज गेटिंग डिफरेंट आंसर, 32.5 ही तो आ रहा है। हाँ, how are you getting 41? That is something I am also asking. This is 10.5. Suraj sir, very good. All the questions were correct. Very nice. Swati ma'am, excellent. I remember you gave the answer also for demographic dividend. Very good. 7 is not bad. 7 is also really, really good. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब। मैं सुप्रभा, आप लोगों का मेंटर। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल बी। ऑलरेडी आपका मॉड्यूल, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो जो सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ वहीं से ये पहला क्वेश्चन, प्रोसेस प्राइमरीली टू कंपेयर सिमिलैरिटी ऑर्गेनाइज और बिटवीन ऑर्गेनाइज और इवन एंड इंडस्ट्री, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पीच और जॉब एनरिचमेंट। राइट आंसर राइट आंसर पहला ऑप्शन है जॉब इवैल्यूएशन, दूसरा है जॉब डिस्क्रिप्शन, है जॉब स्पेसिफिकेशन और तीसरा है यहाँ पे जॉब। टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये आ रहा है, आप किस में जॉब्स को कंपेयर करते हैं। कई बार होता है हम जॉब्स को कंपेयर करते हैं, कई बार हम एक्सटर्नली, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है जॉब वैल्यूएशन। यहाँ पर आपकी 4 टेक्निक और इंफॉर्मेशन एज रिफर टू द एरा ऑफ डेवलपमेंट, era of development of software, era of use of information for decision making. What can be the right answer? क्या हो सकता है राइट आंसर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है आपका द एरा ऑफ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर हम एक्चुअली आईटी टेक्निक का करते हैं क्या करने के लिए, डिसीजन मेकिंग। अगला देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट अचीव्ड बाय मैनी। ऑप्शन है एडेड वर्कलोड, लैक ऑफ सपोर्ट, फैमिली प्रॉब्लम और लैक ऑफ इमोशन। राइट आंसर?
राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो है लैक ऑफ। नॉर्मली कॉन्सेप्ट है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट, पर्सनल चीजें जो हमारी जो भी वो दोनों हमारी बैलेंस आउट करती है। कहीं भी मतलब ऐसा ना हो कि आपकी प्रोफेशन आपकी यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस जो दैट इज एक्चुअली योर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का मतलब क्या होता है, ये आपकी एक तरीके से मेंटल स्टेट है जो आपको ये बताती है कि यू आर हैप्पी जॉब, ठीक है, आप अपनी जॉब से आप कितने सेटिस्फाइड है। रैशनल इकोनॉमिक मैनेजमेंट का लीड हायरार्की। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलरिज्म, रैशनल इकोनॉमिक, सारी आपकी एक ही चीज है। इसका मतलब क्या होता है टेलर का या साइंटिफिक का या रैशनल इकोनॉमिक में ये कहा गया है कि एम्प्लॉय जो है ये आप उन्हें प्रॉपर इंसेंटिव दो, प्रॉपर सैलरी दो, तब इकोनॉमिक कंसिडरेशन वो आपके लिए अच्छे से काम करे। और एम्प्लॉय का काम है की सुन, मैनेजमेंट का काम नहीं है वो एम्प्लॉय की क्या कहते हैं टेलरिज्म, साइंटिफिक रेबल हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा, सब एक ही चीज है। चाहे एग्जाम में रेबल लास्ट ईयर रेबल हाइपोथेसिस के नाम से आया था, एक बार रैशनल इकोनॉमिक नाम से भी आ चुका है, साइंटिफिक मैनेजमेंट रेबल हाइपोथेसिस इकोनॉमिक सब एक ही चीज। यहाँ पर केवल एम्प्लॉय पर ये देखा गया है कि आप इनकी करो और आप उन्हें प्रॉपर सैलरी दो तो वो आपके लिए। अगला देखिए, फाइंड एज दी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग टाइम ऑफ एचआरपी, एचआरएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और एचआर। राइट ऑन।
यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस के बारे में बात हो रही है कि अब क्या कहा जा रहा है, ऑर्गेनाइज लर्निंग टाइम पीरियड टू इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, राइट। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका HRT। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंटिन्यू लर्निंग को इंक्रीज, नॉलेज को करते हैं, राइट, सो दैट हमारा जो जॉब परफॉर्मेंस, द लैंडमार्क्स ऑफ द ऑथर कौन, एवरेकर या फिर राइट। यहाँ पर ये बहुत फेमस द लैंडमार्क्स फॉर दी, और इसके जो लेखक हैं पीटर एब्रिकर, काफी फेमस द लैंडमार्क्स ऑफ लेखक है। क्वेश्चन पे आते हैं, अ सेल्समैन इन अ शॉप पुट अ सूट, एक्चुअली थोड़ा सा आपका आउट ऑफ, अगले पे आते हैं, ट्रांजैक्शन एनालिसिस द वेव एस्पेक्ट इंटरपर्सनल ईगो स्टेट कौन सी है, मिड ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अवेयर ड्रीम, पेरेंट चाइल्ड। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन एनालिसिस आपके पेरेंट, चाइल्ड और एडल्ट। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मतलब है चीजों के बीच में जब दो व्यक्ति एक्चुअली आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आदान प्रदान होता है वो होता है ट्रांजैक्शन, राइट। और यहाँ पर वो आदान प्रदान किसका है, आदान प्रदान होता है एक्चुअली आपके एक पर्सन के से दूसरे पर्सन के बीच में, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन, अब जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, या तो आपकी जो स्टेट है चाइल्ड वाली होती है, कई बार आपकी स्टेट जो है वो आपकी एडल्ट वाली होती है, कई बार आपकी पेरेंट वाली होती है। मतलब हमारी पर्सनालिटी में कोई एक स्टेट में हम जरूर, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन और एक होता है यहाँ पे क्रॉस ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्रॉस मतलब जब हम सामने वाले से नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं और वो हमें उल्टा जवाब दे, राइट, बोलते हैं क्रॉस ट्रांजेक्शन। ऐसे में क्या होता है, जो फ्यूचर कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दैट इज यहाँ पर
आपको सामने वाले से वही आंसर आप एक्सपेक्ट कर, नॉर्मल आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर चाइल्ड, पेरेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अभी। अगला यहाँ पे द प्राइमरी पर्पज ऑफ ट्रेनिंग लर्निंग जॉब, लर्निंग टू फॉर बट आइडेंटिफाई जॉब, लर्निंग फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिया जॉब, या फिर बेटर आंसर हो। यहाँ पे आपका राइट आंसर है प्राइमरी पर्पज ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं? पर्सन राइट प्रेजेंट जॉब के लिए तैयार करते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है वूका सिनेरियो में बात हो रही है पिचक्कर बैन इवेंट एंड आउटकम आर अनप्रेडिक्टेबल, cause and effect are not well understood and previous experience not apply to the आपका पुराना एक्सपीरियंस वो काम में यहाँ पे आपका राइट आंसर दैट इज राइट। तो जो एस्पायरेंट हैं जो अभी सीआईबी की तैयारी करें ऑलरेडी अभी चल खत्म नहीं हुआ, डेट पेमेंट साथ भी हो रहा है, ₹100 अभी चार्जेस लगने लगा है एक्स्ट्रा। सर अड्डा 24/7 अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर आज हम लोग मॉड्यूल बी के ही कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपको पता है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बचा है। ठीक है, 7 जुलाई को आपका एग्जाम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, राइट। 7 जुलाई, दैट मीन्स एग्जैक्ट आपके पास केवल 1 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, केवल 1 मंथ, राइट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपके मॉड्यूल बी से ही लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका रेबल हाइपोथेसिस। देखिए रेबल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है?
वर्कर आर मोटिवेटेड मोर बाय द नीड फॉर सेटिस्फैक्शन, दे आर मोटिवेटेड मोर बाय द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, motivated more by the need for money and motivated more by the working environment. बताइए what can be the right answer? ठीक है, तो रेबल हाइपोथेसिस को कई बार हम साइंटिफिक मैनेजमेंट, रैशनल इकोनॉमिक व्यू या टेलरिज्म भी कहते हैं. व्हाट इज द राइट आंसर? वर्कर आर मोटिवेटेड मोर बाय द नीड फॉर सेटिस्फैक्शन, मोटिवेटेड बाय सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मोटिवेटेड बाय नीड फॉर मनी और बाय वर्किंग एनवायरनमेंट. बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर? देखिए रेबल हाइपोथेसिस का मतलब होता है जिसमें वर्कर जो होते हैं उनकी केवल, ऐसा एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना था. ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का क्या मानना था कि वर्कर जो होते हैं केवल एक ही नीड सेटिस्फाइड होते हैं, दैट इज मनी. तो यहाँ पे आंसर आपका सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल्फ अवेयरनेस. एरिना एंड क्लोज ये जोहारी विंडो से है. एरिना एंड क्लोज आर नोन self, arena and closed are known to other, close and dark are known to other and arena and dark are known to self. सही, क्या हो सकता है राइट आंसर? यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका जोहारी विंडो से है. राइट, इसमें आपके 4 क्वाड्रेंट है, ए बी सी एंड डी. एक होता है एरिना. एरिना में जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको खुद को भी पता होती है और दूसरे लोगों को भी पता होती है. ब्लाइंड में क्या होता है, ब्लाइंड में जो इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरे लोगों को पता होती है बट आपको नहीं पता होती. और क्लोज्ड में या हिडन में
तो इंफॉर्मेशन होती है वो ज्यादातर हम दूसरे से छुपा के रखते हैं, मतलब हमें पता होती है पर दूसरों को नहीं। और डी में क्या होता है, डार्क। तो ये वो इंफॉर्मेशन है ना दूसरों को पता होती ना हमें पता होती। तो यहाँ पे एरिना एंड क्लोज्ड जो है दे आर नोन टू सेल्फ, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जबकि एरिना एंड क्लोज नोन टू अदर, वैसे क्लोज वाला यहाँ गलत हो रहा है, क्लोज एंड डार्क नोन टू अदर ये भी गलत है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है मूविंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इन अ प्री डिटरमाइंड वे इज कॉल्ड एज अ जॉब रोटेशन, जॉब री इंजीनियरिंग, वर्क मैपिंग एंड जॉब एनरिचमेंट। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। ये बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। मूविंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इन अ प्री डिटरमाइंड वे इज कॉल्ड, जब भी हम किसी एम्प्लॉय का शिफ्टिंग करते हैं फ्रॉम वन फंक्शन टू दी अनदर तो बोलते हैं जॉब। नॉर्मली ये कब काम आता है, काम आता है आपका ट्रेनिंग के टाइम पे। ठीक है, ये काम आता है आपका इनिशियल डेज ऑफ ट्रेनिंग वगैरह में। ठीक है, तो जॉब रोटेशन इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एम्प्लॉय परसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द सर्वे एड्रेस एटीट्यूड एंड कंसर्न दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन वर्क विद एम्प्लॉय टू इंस्टिल दी पॉजिटिव। क्या कहलाता है, क्लाइमेट सर्वे, कल्चरल ऑडिट, डाइवर्सिटी इनलार्जमेंट या फिर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। What can be the right answer? The study of employee perception and perspective of an organization. The survey address attitude and concern that help the organization work with to instill the positive change. What is the right answer? ठीक है, देखिए इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्लाइमेट सर्वे। ये क्वेश्चन आपका लास्ट टू लास्ट ईयर आया था। क्लाइमेट सर्वे का क्या मतलब होता है, जिसमें आप एम्प्लॉय की परसेप्शन या पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हो, मे बी विद रिस्पेक्ट टू दी सपोर्ट ऑफ दी सबॉर्डिनेट, सपोर्ट ऑफ दी पीयर, सपोर्ट ऑफ दी सुपरवाइजर, जो वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग एनवायरमेंट है, के बारे में एम्प्लॉय की परसेप्शन जानना, पल्स चेक करना। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्लाइमेट सर्वे। में क्या होता है नॉर्मली, इसमें क्वेश्चनर एम्प्लॉय को दिया जाता है, तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है, परसेप्शन जो है वो चेक किया जाता है। जैसे वी कॉल्ड इट एज अ क्लाइमेट सर्वे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द पर्सन हु वॉज अ गुड परफॉर्मर इन अ डिस्टेंस पास्ट इज एश्योर टू बी ओके एट प्रेजेंट ऑल्सो। ये किसका एग्जाम्पल है, हेलो का, ऑन का, सेंट्रल टेंडेंसी का या स्पिल ओवर का। बताइए।
देखिए यहाँ पे 4 टाइप के आपको बैरियर दिए हैं। पहले का क्या मतलब है, हेलो इफेक्ट का। हेलो इफेक्ट का मतलब है जिसमें कोई एक पॉजिटिव ट्रेट आपकी पर्सनालिटी का इतना भारी पड़ जाता है अप्रेजल के ऊपर कि वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। ऑन का मतलब है कोई एक ऐसा नेगेटिव ट्रेट तो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, मतलब आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल को बिगाड़ देता है। ठीक है। और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है हर किसी को एवरेज रेटिंग देना। ठीक है, मतलब 3 नंबर देना 5 में से। और स्पिल ओवर का क्या मतलब होता है, स्पिल ओवर का मतलब होता है जहां पर आपका जो रेटर होता है वो ये सोचता है कि अगर ये पास में गुड परफॉर्मर है तो ये अभी भी होगा, अगर ये पास में बैड परफॉर्मर है तो ये अभी भी बैड परफॉर्मर। इफेक्ट को हम बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एरिक्सन की जो लाइफ स्टेजेस है वो आपकी टोटल 8 में डिवाइडेड है। 4 चाइल्डहुड की हैं और 4 एडल्टहुड की। इसमें से कौन सी एडल्टहुड की नहीं है? इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, एरिक्सन की थ्योरी पे काफी क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक बार एरिक एरिक्सन की पर्सनालिटी छूटी है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने टोटल 8 स्टेजेस पहली है इन्फेंसी, चाइल्डहुड की है, टॉडलर ये भी चाइल्डहुड की है, एडोलसेंस, एडल्टहुड, मैच्योर्ड। ये तीनों आपकी एडल्टहुड स्टेज। एडोलसेंस जो है वो 13 से 18 साल वाली स्टेज है, एडल्टहुड 18 से 35 साल है, और मैच्योरिटी और भी आगे वाली है आपकी, दैट इज 35 टू 50। टोडलर है वो आपकी चाइल्डहुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज अ सीक्वेंस ऑफ करियर रोल एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल एज पर द डेल्टन थॉमसन एंड मेंटोर, कॉलीग, स्पॉन्सर या फिर अप्रेंटाइज? सही। राइट, देखिए इसका जो राइट सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू दैट इज ACMS। सबसे पहले आता है अप्रेंटाइज, फ्रेशर, यहाँ पर आप ज्यादातर चीजों
ये अपने सीनियर पे डिपेंड होते हैं। फिर आता है कॉलीग, जब आप काफ़ी कुछ सीख जाते हो। फिर आता है मेंटोर, जहाँ पर आप दूसरों को आइडियाज देते हो, शेयर योर आइडियाज, दूसरों को मेंटोर करते हो। फिर आता है लास्ट में स्पॉन्सर, व्हेन यू आर द पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर आपका बी है। Evaluation of training is done at 4 level. Which of the following is not one of them? सही। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत फेमस मॉडल है, दैट इज कर्क पैट्रिक मॉडल। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है, इसमें इन्होंने एक मेथड बताई है RLR। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की अगर आपको इफेक्टिवनेस चेक करनी है तो आप कैसे करते हो? सबसे पहले आप इमीडिएट रिएक्शन को देखते हो, राइट, कि इमीडिएट रिएक्शन क्या है। फिर आप लर्निंग देखते हैं, लर्निंग मतलब प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। फिर आप यहाँ पर कॉग्निटिव लेवल, जो इसका पार्ट नहीं है। फंक्शन का मतलब है रिजल्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर यही है, सी। बी का मतलब है बिहेवियर देखना, कि एम्प्लॉय ने जो भी सीखा है उसको अपने डे टू डे बिहेवियर में कैसे इम्प्लीमेंट किया है। और रिजल्ट का मतलब होता है ये देखना कि जो आपने सीखा है उसका ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलिए, तो एक बार यहाँ पे बैच की डिटेल देख लेते हैं। तो रिसेंट हमारा बैच है पावर पैक केस स्टडी बैच, वो शुरू होने वाला है 1 जून। यहाँ पर देखिए मैं आपको विंडो पे रिडायरेक्ट करके ले जा रही हूँ। यहाँ पर आपको अड्डा 24/7 टाइप करना है सबसे पहले, और फिर आपको यहाँ पर राइट CIB एंड CIB की कैटेगरी पे जाना है। CIB जून पे जाना है आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं महापैक पर अभी चल रही है डबल वैलिडिटी। यहाँ पर बाय नाउ पर जाके 12 मंथ्स का ऑफर है, Y666 कोड आपको लगाना है, अप्लाई कर लेना है, एंड द प्राइस इज 80% यहाँ पर डिस्काउंट है। इसके अलावा जो पावर पैक रिवीजन बैच है वो आपका महापैक में इंक्लूडेड है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम है और ये हिंदी है वाला आपका 1 जून से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर आपको Y6 ये कोड अप्लाई कर देना है। द प्राइस इज 80% यहाँ पर आपको डिस्काउंट है। तो ये बैच आपका महापैक में इंक्लूड, और साथ ही साथ मैंने HR इलेक्टिव का लाइव बैच भी स्टार्ट किया है। ये लाइव बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, भी आप अटेंड कर सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे आपका स्टडी प्लान देखिए दिया हुआ है।